Hello, sir. I'm from Gurgaon. After working for 15 years at different places, I have realized that doing a job is not my cup of tea. So I quit my job last week. Now I'm back to square one and I need to struggle again for survival. I have to take care of my family, run the house, and pay the children's school fees. Now I feel as if nobody in the world wants to help me. I should not have helped such people at all. It is not that there are no helpful people in the world, but whenever I ask them for help, it seems to scare them. I do understand that they are busy with their own lives, but the question is that even I am the child of the same God. So why has depression and frustration fallen to my lot? Why am I not getting work that can help me fulfill my basic needs? I do not want to work for someone else under any circumstances. I want to set up my own business, but I'm not getting help from anywhere. However, I'm still making efforts and I'm confident that I'll definitely be able to do something by myself. Money is required for everything in life. In spite of enduring so much in the office and at home, by grace of God, I still have enough energy left to fulfill my responsibilities toward my family. The truth is that I do not want to do a job, as I cannot tolerate the work pressure and the unhelpful attitude of colleagues, which causes me great distress. Recently, I happened to read about you, but I was hesitant to confide in you. However, I have finally found the courage to speak to you about my problem. This proves that there is glimmer of hope still left within me. I am sure that your capacity to think and understand is much greater than common people like us. But I still haven't lost strength and am trying to do something good for a living. However, my strength start giving away when I'm refused. I read a lot of spiritual books and thoughts of people like you. After reading these, I feel peaceful for a while, but when I do not see even a ray of hope, I feel shattered. I have heard from spiritual gurus that we alone are responsible for whatever we are doing today. I agree with this, but I cannot understand why I am the only one suffering the consequences of my deeds. After all, whatever I did was only because of the psychology of the people around me and their bad thoughts. I know that there is something wrong with me, which is taking me towards negativity every now and then. But being an ordinary man, I am unable to overcome this. My life has become like a weighing scale. I am positive for a moment, and then the very next moment, I am left with no strength. All in all, I am extremely distressed, and whenever I seek help, all I face is disappointment. I do not know what I should do and how I should take care of my family. I know that I have not lost and can face all these problems, but without the help from anywhere, I feel rejected. I consider it necessary to inform you that I have also tried to take help from those related to religion. But the problem is that they ask for a lot of money, and right now it is not possible for me to arrange for such a large amount. Please help me. मैं तो आपकी मदद करूंगा ही, लेकिन मेहरबानी करके पहले आप ये तय कर लें कि आपको अपनी मदद करनी है। आपने अच्छे खासे चल रहे जीवन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और आपकी मानसिकता भी बहुत ज़्यादा इस समय विचलित, कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज हो चुकी है। अब सवाल ये है कि मनुष्य के पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं जीने के। यदि आपको खुरापत करने की आदत है तो मेहरबानी करके अपनी जिम्मेदारियां कभी मत बढ़ाएं। ये सब जने समझ लेना, क्योंकि खुरापत हम अपने साथ तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुरापती में हम दूसरों को शामिल नहीं कर सकते। अब 15 वर्ष तो आपने नौकरी करी और फिर आपको खुरापत सूझी कि नौकरी नहीं करना है, अब व्यवसाय करूंगा। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। यदि आपको नौकरी नहीं करनी थी तो 15 वर्ष पहले ही नहीं करनी थी। अब क्या है? और यदि आपको ये खुरापत ही करनी थी तो विवाह नहीं करना था, बच्चे पैदा नहीं करने थे। अब आपकी एक खुरापत के पीछे इन सबका जीवन दांव पे लग गया। ये बात आपको समझनी चाहिए और ये हर खुरापती व्यक्ति को समझनी चाहिए। यदि हम जवाबदारियां लेते हैं
तो खुरापतों पे ताला लगाते सीखना चाहिए। और यदि खुरापती हैं तो पहले अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाइए अपनी खुरापत के कारण, फिर जिम्मेदारियां बढ़ाइए। क्योंकि आपको अपना जीवन दांव पे लगाने की तो छूट है, लेकिन पूरे परिवार का और बच्चों का जीवन दांव पे लगाने की छूट नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि नौकरी में करना नहीं चाहता, पैसे आपके पास है नहीं, और आप अपने सवाल में कम से कम 4 से 5 बार दूसरों को दोष दे चुके हैं कि वे मदद नहीं करते। वे आपकी मदद क्यों करेंगे और किस बात के लिए करेंगे? अरे आप ठीक से नौकरी नहीं कर पाए और अब आप चाहते हैं कि आपको व्यवसाय के लिए कोई पूंजी प्रदान करे, कोई उधार दे, कोई आपकी मदद करे, तो वो तो कोई भी नहीं करेगा। कोई पागल हो तो बात अलग है। और फिर आपका क्या भरोसा? आप कल उठ के व्यवसाय चालू कर लें, किसी से उधार भी ले लें और फिर अचानक कहे कि इस व्यवसाय में मजा नहीं है, मेरे को तो संन्यास लेना है, तो बेचारा उधार देने वाला तो लग गया काम पे। थोड़ा समझें आप। कोई आपकी मदद करेगा और आप व्यवसाय स्टेब्लिश करेंगे, ये तो कमाल की बात हो गई। क्यों कोई मदद करेगा? चलो, इसके बाद भी आपकी समस्याओं का अंत नहीं आ रहा है। आप ऐसी गलत जगह जाकर फंस और मरना चाह रहे हैं और फंस रहे हैं, और ये साइकोलॉजिकल पतन है। आप कह रहे हैं कि मैं धर्म गुरुओं के पास जा रहा हूं। आप वहां पर क्यों जा रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं कि वे उपाय बता रहे हैं लेकिन पैसा मांग रहे हैं। अरे उनके पास युगों से कोई उपाय नहीं है। जिनके पास उपाय होता वो स्वयं दूसरों के पैसों पे पलते। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो लुटेरे हैं। अंगूठी, तावीज, आश्वासन, धागा, ज्योतिष क्या कर लेंगे आपका? ये व्यवस्था ही नहीं है कुदरत में। एक तो आप परेशान हैं, पैसे नहीं है, और ऊपर से इलाज कहां खोज रहे हैं कि पैसा इनको दे दें ताकि आपकी परिस्थिति ठीक कर लें। आपकी परिस्थिति ठीक कैसे होगी? कोई पैसा दे या आपके पास कहीं से पैसा आ जाए ताकि आप व्यवसाय शुरू कर सकें। अभी समस्या का समाधान अंगूठी, तावीज, आश्वासन, धागों में कहां से निकलेगा? वे कहां से पैसे पैदा करेंगे? और वे पैसे पैदा कर सकते होते तो भारत तो दुनिया का सबसे धनाढ्य देश हो जाना था। अरे युगों से हम गरीब हैं, युगों से परेशान हैं। आप समझते क्यों नहीं है? प्रकृति की ओर से मनुष्य के लिए एक ही व्यवस्था है कि वो खुद मेहनत करे, खुद काम करे और खुद आगे बढ़े। दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान इसमें रत्ती भर जवाबदार नहीं है। उसने मनुष्य को स्वतंत्रता देकर, कर्मों की आजादी देकर और सुपर इंटेलिजेंस देकर पैदा कर लिया। अब मनुष्य चाहे उसका उपयोग करके आगे बढ़े और चाहे उपयोग न करे और अपने को बर्बाद करे। इसमें कोई आश्रय आश्वासन काम नहीं आएंगे। और जो भी मनुष्य जीवन से थकता, परेशान होता, जिसको लोभ पकड़ता, वही इन दुकानों में चक्कर काटता। और जो इन दुकानों के चक्कर काटना शुरू होता, उसकी और बर्बादी शुरू हो जाती। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पतन हो गया कि जीवन मेरा, निर्णय मेरे, कर्म मेरे, उससे कुछ हो नहीं रहा, सब उल्टा हो रहा है। और अब कौन करेगा तुम्हारे जीवन का उद्धार? कोई धागा? ये कैसा कमाल है। सो मेहरबानी करके सबसे पहले वहां से हटे, इतना कॉन्फिडेंस लाएं और प्रकृति की रचना समझें। और आपके सवाल में ही है, आप ये मान रहे हैं कि मैं अपनी गलती का भुगत रहा हूं, तो आपकी गलती क्या, उस पर ध्यान दें। और आपकी गलती इतनी ही है कि आपने नौकरी छोड़ी, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। और अभी भी उसको ठीक कर लें। व्यवसाय का ख्याल दिमाग से निकाल दें। कोई उधार देगा ये भूल जाएं। और अगर इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़े
तो जो थोड़ा बहुत घर में खाने पीने को बचा है वो भी चला जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। मत करे अपनी पत्नी पे जुल्म, मत करे अपने बच्चों पे जुल्म। अब व्यवसाय नहीं हो सकता, और आपको फिर व्यवसाय का अनुभव क्या है? किसी ने उधार दे भी दिया तो वो भी डूब जाएगा, फिर आप और कहीं के नहीं बचेंगे। अतः बेहतर है कि इससे पहले कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, आप संभल जाएं और वापस से कोई अच्छी नौकरी खोज लें, या जहां नौकरी कर रहे थे वहीं वापस चले जाएं और जीवन की गाड़ी को फिर पटरी पे ले आएं। आपका परिवार भी आपसे दुखी है, निश्चित ही घर में आपके बेहद झगड़े हो रहे होंगे, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है कि पूरा परिवार संकट में, तो घर में अच्छे वातावरण की उम्मीद नहीं रख सकता। कोई दोस्त यार के आपके साथ देने का सवाल नहीं है, वे भी आप पे हंसते ही होंगे, मुंह पे नहीं तो पीछे पागल कहते ही होंगे। तो आप चारों तरफ से परेशानी में गिरे हैं, समझ लेना। फाइनेंशियल परेशानी अकेली नहीं है, परिवार में भी वातावरण अच्छा नहीं, दोस्तों में अच्छा नहीं, बाहर अच्छा नहीं। क्यों इतने संकट स्वयं झेल रहे हैं, और क्यों इतने बड़े संकट में परिवार को डाल रहे हैं? सो मेहरबानी करके व्यवसाय का भूत दिमाग से निकाल दे, धर्म गुरुओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़े। आपका जीवन है, उसे बनाना आपका कर्तव्य है। कुदरत की रचना ऐसी है कि यह मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। सो एक बार फिर डटकर नौकरी करें और दिल लगाकर नौकरी करें। मनुष्य जितना भी दिल लगाता है अपने काम में, उतना वो स्वतः प्रगति करता है, ये नियम है। तो मेहरबानी करके आप अपना जीवन बचा लें, परिवार का जीवन बचा लें। हवा में महल खड़े मत करें। ज़्यादा दिन तक आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली करीब करीब आप हार चुके हैं। आप में हिम्मत है, इसलिए आप टिके हुए हैं, और आपके लेटर से भी स्पष्ट है कि आप में हिम्मत है, आप हारना नहीं चाहते। आप ये भी मानते गलती आपकी है, तो वो गलती क्या है? गलती एक ही है कि आप व्यवसाय नहीं कर सकते, व्यवसाय का कोई वातावरण आपको उपलब्ध नहीं है। उस व्यवसाय की तमन्ना में आपने जो नौकरी छोड़ी है वो आपकी गलती है, उसको ठीक कर लें। और एक बात मैं सबसे कहूँगा, जब भी मनुष्य खोटे आश्रय आश्वासनों की तरफ जाता है, तो वो ध्यान रख लेना कि वो ना सिर्फ अपने भविष्य की प्रगति पे फुल स्टॉप लगाता है, बल्कि अपने जीवन को पीछे की ओर ले जाने की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि वो कुदरत के परम नियम के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, जहां कुदरत कहती है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। यदि कोई धागा, यदि कोई अंगूठी, यदि कोई आसरा, यदि कोई आश्वासन, यदि कोई मंत्र कुछ कर सकता होता, तो बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर बड़े दयालु थे। सबको ऐसा मंत्र, ऐसा धागा देके चले गए होते, मनुष्य के संकट कब के दूर हो चुके होते। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था कुदरत में नहीं है। इसलिए एक मनुष्य होने के नाते मेहरबानी कर कोई भी अपने अंतिम पतन पर मत पहुंचो, जहां से आप जादू की उम्मीद लगाने लग जाओ। और जादू की उम्मीद करने का मतलब ही इतना है कि अब आप पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। सो अपने को संभालो, नौकरी वापस करने लग जाओ और अपने तथा अपने परिवार का जीवन बचा लो मेहरबानी करके। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और ईगो नहीं, जिद नहीं। वापस नौकरी करने जाएंगे तो लोग वाह क्या कहेंगे, कई बार इस डर से भी आदमी नहीं जाता। अरे जिसको जो कहना है कि जीवन आपका दांव पे लगा है, और फिर मानने में क्या गलती है? हंस के कह देना, हाँ बोला था तन के नहीं करूंगा नौकरी, अब कर रहा हूं, तो क्या हो गया? कोई गुनाह हो गया? और कोई ऐसा कहे कि बड़ा तन के कह रहा था फिर क्यों कर रहा है, ला पैसे दे दे, नहीं करता है, क्या दिक्कत है? तो वो बोलने वाला कौन है? अरे आपकी मर्जी छोड़ दी,
आपकी मर्जी थी, कह दिया होगा तन के अब नहीं करता नौकरी, अब मेरी मर्जी है, कर रहा हूं नौकरी। तीनों डिसीजन आपके हैं, क्यों चिंता करते हैं? कई बार ये भी मैंने देखा है, मनुष्य बोला हुआ वापस लेने में डरता है और सिर्फ इस एक चीज के कारण पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। सो मेहरबानी करके वो ईगो भी मत पालें, चुपचाप नौकरी करने लग जाएं। जिसको जो कमेंट करना हो करे, जीवन आपका और आपके परिवार का दांव पे लगाए, ठीक कर लें उसको। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।